Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you are very happy in this morning times. Same, I also happy, my friends. So today I going to teach you about the prepositions, and there are 25 prepositions are there. This is the part of the grammars, my friends, and it is important for our basic English. When we want to write something letters or some paragraph or whatever we want to write, there is needed grammar, my friends. Without grammar our English will be broken English, so we have to learn first the grammar things. Okay, my friends, so today important part of the grammar is the prepositions. There are 27 prepositions are there. Yesterday I had taught some of prepositions, around 10 prepositions, so you might have watched the videos. 8, and into, by, with, on, up, over, above, and under, and after. These 10 prepositions I have taught yesterday already, my friends. So if you did not watch these videos, please go and check and watch these videos so you can understand. Okay, so today now I going to teach these prepositions 11 to 27. These all 27 prepositions we will today complete, my friends. Okay, so if you are the first times in my videos, please subscribe and have a like, my friends, so I can understand you are really watching my videos, so you can get my videos whenever I upload my videos. Okay, so if you want to really the learner persons in your English journeys, then you must have to follow these grammar tricks. This grammar will lead you in each and every your study in your life, what you want to be in your life. Okay, so English is most important, and for learning English there is beside that needed the grammar, basic grammar. So this is the basic grammar I going to teach you. So now we will start besides. Besides means बाजू में, जो हमें जे मैं खड़ी हूँ, मेरी बाजू में कोई खड़े है, तो हमें इसके लिए beside यूज़ कर सकते हैं. तो हम इसका एक सेंटेंस बना के सीखेंगे. I sat beside my friend. मैं मेरे मित्रों के बाजू में साइड में बैठी थी. I sat beside my friends. beside को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. beside है ये प्रेपोजिशन से. बहुत बार क्या होता है, हमको सब ये वर्ड से हमें ऑलरेडी सीख लिया है, पता है, बहुत पुराना समय से हम सीख लिया है, लेकिन कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, उसका सेंटेंस कैसे बनाना है, ये हमें पता नहीं है. तो मैं ये सब इस प्रेपोजिशन कैसे कहाँ यूज़ करना है मैं आप बताने वाली हूँ, फ्रेंड्स. ओके, सो दिस बिसाइड्स वी कैन यूज लाइक दिस. आई सेट बिसाइड माई फ्रेंड्स. मैं मेरा मित्रों के बाजू में साइड में बैठी हूँ. और माई हाउस इज बिसाइड माई अंकल हाउस. हम ऐसे भी बना सकते हैं, मेरा घर है मेरा अंकल के बाजू में ही है. ओके, एंड नाउ वी विल learn the among. AMONG, among. among means वच्चे, बीच में. हमें among का हमें બે થી વધારે वस्तु के व्यक्ति होए, इसीलिए हम इसमें यूज़ कर सकते. बे से ज़्यादा जो व्यक्ति है और कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए हम among प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं. तो इसका सेंटेंस हमें कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे. We hide among the trees. We hide. We क्या है, एक प्रोनाउन से. एक से ज़्यादा जो लोग हैं तो उसके लिए हमें we प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं. hide, HID, hide मीन्स छुपाया है. और among है प्रेपोजिशन से. और the trees वो झाड़ है. ट्रीस एस लगाया गया है, तो एक से ज़्यादा जो झाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, तो हमें ट्रीज बोलते हैं. तो वी हाइड अमोंग द ट्रीज. हम झाड़ों के बीच में छुप गए. अमोंग है बहुत सारे जो झाड़ होते हैं, इस झाड़ों के बीच में हम छुप गए हैं. अमोंग
बहुत सारे झाड़े होते, बे से ज़्यादा जो पेड़ होते हैं, इसके लिए हम अमोंग यूज़ कर सकते हैं। हम एक या दो जो चीज़ है इसके लिए हमें अमोंग का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग पड़ सकता है। सपोज समझ लीजिए आई हैड अमोंग माई सिस्टर, हमारी सिस्टर एक ही है, और हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो गलत हो सकता है। सो हमें याद रखना होगा कि अमोंग कहाँ कैसे यूज़ करना है। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन मीन्स बच्चे, वो भी बच्चे और ये भी बिटवीन भी बच्चे है। दोनों का ट्रांसलेशन में एक ही होता है, एक ही अर्थ होता है, बच्चे बीच में होता है। लेकिन अमोंग है वो बे से ज़्यादा जो होता है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, और बिटवीन है ये दो ही चीज़ के बीच में ही यूज़ कर सकता है। ओके, सो उसका सेंटेंस हमें कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे। दिस विलेज इज बिटवीन टू हिल्स, टू हिल्स, दो ही चीज़ों के बीच में ये बिटवीन प्रेपोजिशन हमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस विलेज इज बिटवीन टू हिल्स, दिस विलेज, विलेज मीन्स एक गांव, जो गांव है, टू हिल्स, हिल्स मीन्स एक पहाड़ होते हैं। कितना पहाड़ है? टू हिल्स है। तो ये जो विलेज है, जो गांव है, वो दो पहाड़ों के बीच में है। ऐसे हमें उसका सेंटेंस बनाते हैं बिटवीन का। ओके, बिटवीन जो प्रेपोजिशन है हम ऐसे यूज कर सकते हैं। बे वस्तु के व्यक्तिना संदर्भ में बिटवीन को उपयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति होगा और कोई चीजें होगी, दो ही होगी, हाँ हमें यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ विल स्टडी द बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स पहले पार, हमारी सोच से ज़्यादा, हम जो सोचते हैं इससे भी ज़्यादा कौन जान सकते हैं? परमेश्वर जान सकते हैं। ओके, हमारी सोच से हम छोटा सोचते हैं, छोटा सा मांगते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा सोचने वाला हमारा परमेश्वर। तो हमें ये बियॉन्ड है, तो बियॉन्ड को हमें कैसे यूज़ करना है ये हम इसमें सीखेंगे। देयर इज ए गार्डन बियॉन्ड द रिवर, देयर इज ए गार्डन, वहाँ एक बगीचा है, बियॉन्ड द रिवर, रिवर मीन्स एक नदी, जो नदी आती है, तो नदी के पहले पार क्या है? एक बगीचा है। बियॉन्ड प्रेपोजिशन हमें ऐसे यूज कर सकते हैं। देयर इज ए गार्डन बियॉन्ड द रिवर, नदी के पहले पार क्या है? बगीचा है। और दूसरा सेंटेंस, आई वर्क बियॉन्ड 1 आवर, आई वर्क बियॉन्ड 1 आवर, मैंने 1 घंटा से ज़्यादा पढ़ाई कर लिया। ओके, आई वर्क बियॉन्ड 1 आवर। इफ सपोज यू डू नॉट नो दिस प्रेपोजिशन प्रॉपरली, देन हाउ यू कैन मेक यू सेंटेंस, यू नो दैट आई वर्क 1 आवर। आपको बोलना था मैंने 1 कलाक से भी ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन आपको प्रेपोजिशन यूज करना नहीं आता है, तो आप गलत सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सो यू कैन ऑल्सो कन्फ्यूज एंड who is reading, that person can also confuse. Okay, so preposition must know and keeping in your mind. Okay my friends, now we will study the through, THROUGH, through means माथी, कहाँ से हम पसार होते हैं, कुछ बड़ा क्राउड है, बड़ा क्राउड जो लोगों का क्राउड है, मैरिज का क्राउड है, कोई आर्मी का क्राउड है, बहुत सारा क्राउड में से हम पसार होते हैं, तो ये जो थ्रू है प्रीपोजिशन हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, वी वॉक थ्रू द क्राउड, हम एक बड़ा क्राउड में से क्या हुआ? चल गए, चल आए। हम एक बड़ा क्राउड, जो एक बहुत बड़ा एक टोळू था, इसमें से हम पसार हुए। ओके, वी वॉक थ्रू द क्राउड। और हम दूसरा भी बनाते हैं, आई स्टडी थ्रू दिस बुक, मैं ये बुक के में से ही सीखा हूँ। ओके, नाउ विल स्टडी द अप टू, UPTO, अप टू अमुक हद के लिए है। अप टू जो प्रेपोजिशन है अमुक हद के लिए होता है,
तो हम उसको कैसे यूज करना है? वी वॉक अप टू द हिल्स। हमें हद जो है, हद को हमें ओढ़ंगना नहीं है। जो हद किया है ये हद तक ही हमें जाना है। तो वी वॉक अप टू द हिल्स। हमें जो पहाड़ थे यहाँ तक ही गए हैं, पहाड़ों को क्रॉस करके हम पहले पार गए नहीं है। आई वॉक अप टू माई स्कूल। मैं मेरे स्कूल तक चल के गया। ओके। और आई वॉक अप टू गार्डन। मैं बगीचा तक गया। ओके। सो दिस अप टू वी कैन स्टडी, वी कैन मेक सेंटेंस, वी कैन यूज। ओके। नाउ फ्रॉम, फ्रॉम FROM, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स થી। કોઈ ચોક્કસ સમયથી અથવા સ્થળની સંદર્ભમાં ફ્રોમ વપરાય છે। કોઈ સ્થળ अथवा तो कोई समय के लिए ये प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। ओके। सो हमें उसका सेंटेंस कैसे बनाना है, फ्रॉम हमें कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है, ये हम बनाएंगे। आई वेंट फ्रॉम लिम्बड़ी टू सुरेंद्र नगर। आई वेंट, वेंट है एक ग्रामेटिकल्स 5 टेंस में बनाया है। गो, गो का 5 टेंस में वेंट हो गया। ओके। सो आई वेंट फ्रॉम लिम्बड़ी। मैं लिम्बड़ी से कहाँ गया? टू सुरेंद्र नगर। आई वेंट फ्रॉम लिम्बड़ी टू सुरेंद्र नगर। मैं लिम्बड़ी से सुरेंद्र नगर गया। हमें फ्रॉम ऐसे यूज कर सकते हैं, एक स्थल के लिए बताया गया है। ओके। जो लिम्बड़ी नाम का एक छोटा सा सिटी होगा और गांव होगा और कुछ स्थल का नाम बताया गया है। तो ये जो लिम्बड़ी से सुरेंद्र नगर गया है। ओके। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा। ही इज सफरिंग फ्रॉम, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ही इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा। ओके। These 3 sentences we can make, and other sentence also according to your knowledge, according to your thinkings. You have to think how I have to use this preposition. You can make many sentences, friends. You have to think in English. Whatever you thinking in your own language, that you have to think in English. So you can make the many sentences. Then you can your English will be very fluent English. Okay, my friends. Now we'll learn this to. To means तरफ। तरफ एक दिशा, दिशा बताती है, गति सूचवता है, गति क्रियापद बताता है। एक टू मीन्स तरफ बताता है, हमें कहाँ जाना है, तो एक हमें दिशा बताती है। ओके। टू मीन्स तरफ। तो हमें ये टू कैसे यूज करना है? दर्शन वेंट टू स्कूल। जो दर्शन कहाँ गए हैं? टू ये है कहाँ दिशा बताते? स्कूल के तरफ दिशा बताते हैं। तो हमें टू कैसे यूज करना है? दर्शन वेंट टू स्कूल। दर्शन स्कूल गया है। और आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया हूँ। और आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गई हूँ। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। टू कहाँ हमें बताता है? फ्रेंड्स के हाउस, मार्केट में बताता है, स्कूल में बताता है। ओके। टू हमें बहुत बहुत जगहों के लिए में हम यूज कर सकते हैं, ये प्रेपोजिशन है। ओके। एंड फोर, FOR, फोर मीन्स माटे थी कोई अचोक्कस समय, गाढ़ो और पीरियड टाइम। जो अचोक्कस समय के लिए हमें ये फोर प्रेपोजिशन यूज करना है। तो हम इसको सेंटेंस कैसे बनाते हैं? He has been here for 15 years. एक समय का एक पीरियड बताया गया है। ओके। He has been here means this is a present perfect tense में बताया गया है। present continuous perfect tense में ये सेंटेंस बनाया गया है। He has been here, ये यहाँ से रह रहे हैं। For 15 years, 15 सालों से कंटिन्यूस यहाँ में रहते हैं। He has been here for 15 years. ओके। हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। फॉर जो प्रेपोजिशन है हमें याद रखना है, प्रेपोजिशन है या क्या है। ओके। नाउ विल स्टडी द टिल। टिल मीन જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી।
टिल, TILL टिल। तो उसका हमें कैसे सेंटेंस बनाते हैं, वेट टिल आई कम, मैं जहाँ સુધી आऊँ वहाँ तक आपको इंतज़ार करना है, मैं नहीं आऊँगा तब तक आपको इंतज़ार करना है। ओके, वेट का हमें सेंटेंस ऐसे बना दे, वेट टिल आई कम, डोंट गो, मैं आऊँगा तब तक आपको इंतज़ार करना है, आपको जाना नहीं है। ओके, अंटिल, अंटिल हमें कैसे यूज करना है, वो भी जहाँ સુધી ત્યાં સુધી ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें नकारात्मक आता है, अंटिल के अंदर नकारात्मक आता है। डोंट गो अंटिल आई रिटर्न, डोंट गो अंटिल आई रिटर्न, रिटर्न में फिर वापस नहीं आऊँगा तब तक आपको जाना नहीं है। डोंट गो अंटिल आई रिटर्न, मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक आपको रिटर्न होना नहीं है, फिर वापस आना नहीं है। इससे हमें ये जो अंटिल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो माय फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस ऑल दोस preposition you may understood. Okay, and if you have some confusion in your mind, if you not understand, please comment me so I can give you more explanations for your easiness. Okay, so this is the grammars, important grammars. My friends, I can tell you that I am not a teacher. Okay, first of all, I am not a teacher. This is my daily routine English. Whenever I want to speak, that I am thinking in English. Okay, then I am speaking in my house. When I am alone time also I am speaking English. Whatever I am doing in kitchens, there is also I am speaking in English. When I am washing the clothes, there also I am speaking English. Alone time I have to practice myself, because I do not have anyone to have a company, my friends. So what I have to do, I have to think and think and think and speak out, make a practice. Then what we learn from morning to evening, that will be putting in the practice. Then our tongues will also get the practice. Our tongues should be have a more and more get practice, my friends. So you have to also do like this, my friends. If you want to fluent in your English journeys, then you have to follow these tricks. This is important tricks, my friends. So this grammar is the very important, my friends. This grammar, like this, such kind of grammars nobody is teaching. Whether you may go in the school, in your tuitions, wherever, no one is teaching such kind of like this grammar things. What to do, how to learn, how to make sentence, nobody is teaching. This is myself only I have improved. This is broken. This my English grammar is very old grammar books, but still I take care of this grammar. Okay, my friends, because this grammar is my teachers. From this grammar only I have learned, and through these books only I am now able to speak, and I able to give the idea to other also, how to speak, how to learn, how to improve your English, what to do first. That all things what I have experienced in my life, that I am teaching to my friends also. Okay, so my friends, if you want to learn, follow these all grammar tricks, then there is no need, no any confusion in your mind. Okay, my friends, so I hope that you might have understood this all my teachings, these tricks, what to do. And one thing I will tell you, my friends, if you do not have time to learn, if you are very busy in your school times, in your tuitions, you have not able to keep the times, then do one thing, my friends. When you are alone time, when you are walking, when you are taking rest, when you are doing something alone times, that time you think in English. Okay, in your mind,
what you are thinking in your own language that you think in English, so you can improve. Okay my friends, so I hope that you understood, and I hope you can within a 30 days you can speak very well English, but we have to follow only. Okay, so we will meet the next video. तब तक के लिए bye.